Hello dear students, hope you all are keeping well and enjoying your days. In my earlier classes, I have told you about life processes. All living organisms perform some basic functions which is called life processes. And these life processes include nutrition, respiration, excretion, movement, growth, response to stimuli. While we will talk about nutrition, what is nutrition? Nutrition is the process of taking in food and utilization by the body is called nutrition. न्यूट्रिशन हम किसे कहेंगे? जो भोजन हम लोग करते हैं और वो भोजन करने के बाद वो हमारे शरीर में जाके किस प्रकार से वो वर्क करता है, किस प्रकार से वो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, ये सारी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन. एंड ओवरऑल देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, न्यूट्रिशन जो है उसका दो मोड्स होती है. दे आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स organisms like green plants prepare food for themselves. Okay, prepare food for themselves, their own, are called autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition हम किसे कहेंगे? Autotrophic nutrition हम वो न्यूट्रिशन को कहेंगे जिसमें सजीव यानी कि ग्रीन प्लांट जनरली जो पौधे होते हैं, पौधे करते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपना भोजन बनाने के लिए वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं. Hence they are known as autotrophs. Autotrophic means auto means self, trophic means nourishment. जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ऐसे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. एंड सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिज्म that depend upon plants or other animals for their food are called autotrophic organisms. Okay. The mode of nutrition are of two types, autotrophic and autotrophic. So today we will learn about autotrophic nutrition. Okay, we will learn about autotrophic nutrition. So dear students, before teaching you about autotrophic nutrition, I must tell you this type of nutrition can be found only in green plants. इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये सिर्फ ग्रीन प्लांट को ही देखने को मिलता है, ग्रीन प्लांट में देखने को मिलता है. बिकॉज ग्रीन प्लांट्स डोंट डिपेंड अपॉन एनीवन टू प्रिपेयर देयर फूड. एंड यू ऑल हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस दैट the process by which green leaves prepare food for themselves are called photosynthesis. Or photosynthesis is the process by which green leaves prepare food for plant. तो ये जो प्लांट जो अपने लिए जो भोजन बनाती है ये प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे photosynthesis. Okay. So what is photosynthesis? You all know what is photosynthesis? It is a process by which green leaves prepare food for plant. तो आज हम लोग ये देखेंगे, टुडे वी विल लर्न वेयर द फोटोसिंथेसिस इज कैरीड ऑन. ओके, वेयर इट इज कैरी ऑन एंड हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर प्लांट्स. सो स्टूडेंट्स, बिफोर टीचिंग यू अबाउट फोटोसिंथेसिस आई मस्ट टेल यू द रॉ मटेरियल इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस. व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स? Raw materials are needed for photosynthesis. What are the raw materials? I told you already. First is chlorophyll. Second is sunlight. Third one is carbon dioxide. And the fourth one is water. So students, these are the raw materials which are needed by plants for फोटोसिंथेसिस. जब प्लांट्स अपने लिए भोजन बनाती है
द प्लांट्स को ये चार मतलब ये चार रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। दीज फोर रॉ मटेरियल्स क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। एंड यू नो फ्रॉम वेयर दीज ऑल थिंग्स are often chlorophyll. Chlorophyll is the green color pigment present on the leaf. That is called chlorophyll. Sunlight from nature, from sun we are getting the light, sunlight. Carbon dioxide from atmosphere. Water from the soil. Okay. So these are the raw materials. And one more thing we also studied that all these raw materials together perform one chemical reaction, together react with each other, and they produce carbohydrates. They produce carbohydrates along with oxygen. Okay? जब फोटोसिंथेसिस होती है, जब पेड़ अपने लिए भोजन बनाता है, फोटोसिंथेसिस होती है, वो फोटोसिंथेसिस में कुछ रॉ मटेरियल्स की यूज करता है प्लांट। वो रॉ मटेरियल्स होता है क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये चारों रॉ मटेरियल जब मिलके एक साथ केमिकल रिएक्शन करता है, मिलके एक साथ वर्क करता है, परफॉर्म करता है, देन दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। इसीलिए आप लोगों को पहले से पढ़ाया गया था कि फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन के साथ साथ वो प्रोड्यूस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, so these all things I have already taught you in your previous classes. So today let us see the role of leaves in photosynthesis. What is the role of leaves in photosynthesis? So dear students, now you know that what all raw materials are needed by plant to prepare their food. The raw materials are chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water. ये चार रॉ मटेरियल जब मिलते हैं प्लांट को, तब प्लांट अपने लिए भोजन बनाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लांट का भोजन कहाँ बनता है? जैसे हमारे घर में भोजन हमारे किचन में बनता है, वैसे प्लांट अपने लिए भोजन एक स्पेसिफिक रीजन है, स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे बनाती है। दैट इज ग्रीन लीव्स। दैट इज ग्रीन लीव्स। एज द ग्रीन लीव्स आर नोन एज द किचन ऑफ प्लांट। प्लांट का किचन हम लोग ग्रीन लीव्स को कहते हैं, क्योंकि ग्रीन लीव्स पे ही फोटोसिंथेसिस होती है। रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस, as we know that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water, ये चार रॉ मटेरियल जब हमें मिलती है, प्लांट को मिलती है, तब प्लांट फोटोसिंथेसिस करती है। नाउ लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। सपोज योर मदर वांट्स टू कुक अ डिश। योर मदर वांट्स टू कुक अ डिश, so she need all the ingredients, she need all the material in the kitchen. Okay, not in the bedroom or not in the bathroom. She need all the materials together in the kitchen because she is going to cook food in kitchen. जैसे कि आपकी मम्मी, एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग देखो, मम्मी अगर आपके लिए कोई डिश अगर बनाना जा रही है, कोई डिश बनाने जा रही है, सपोज योर मदर इज गोइंग टू प्रिपेयर खीर फॉर यू। ओके, सो मदर को वो खीर में जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, वो सारा मटेरियल लेके मदर कहाँ पे इकट्ठा रखेंगे, कहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे? डेफिनेटली वो मदर एक्यूमुलेट्स ऑल द मटेरियल इन द किचन बिकॉज शी इज गोइंग टू प्रिपेयर द फूड इन द किचन। आपके मम्मी को सारे इंग्रेडिएंट किचन में चाहिए, क्योंकि किचन में मम्मी आपका डिश बनाने जा रही है। डिश जहाँ पे बनती है वो है किचन। किचन में मम्मी कुक करती है, इसलिए मम्मी को डिश बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट, जो भी सामग्री चाहिए, वो सारा सामग्री को इकट्ठा करना पड़ेगा किचन में। ठीक उसी तरीके से एज आई टोल्ड यू, द लीव्स आर नोन एज द फूड फैक्ट्री, द लीव्स आर नोन एज द किचन ऑफ प्लांट। सो द प्लांट नीड ऑल द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस इन द लीफ। इससे इसका यह मतलब है कि जो क्लोरोफिल है, जो सनलाइट है,
जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है, ये चारों चीज़ों को प्लांट का लीफ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। प्लांट का लीफ पे जब पहुंचेगी तभी जाके प्लांट अपने लिए भोजन प्रस्तुत कर सकती है, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो क्लोरोफिल, हम लोग बात करते हैं क्लोरोफिल की। व्हाट इज दिस क्लोरोफिल? द फर्स्ट रॉ मटेरियल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या है और क्लोरोफिल प्लांट तक कैसे पहुंचता है? क्लोरोफिल प्लांट तक नहीं पहुंचता है बिकॉज यू ऑल नो दैट द कलर ऑफ अ लीफ इज ग्रीन। लीफ का कलर ग्रीन है। और लीफ का कलर ग्रीन क्यों है? क्यों लीफ का कलर रेड नहीं होता है, लीफ का कलर पर्पल नहीं होता है, लीफ का कलर पिंक नहीं होता है? क्यों ग्रीन है? मोस्टली लीफ क्यों ग्रीन है? बिकॉज ऑफ द pigment called chlorophyll. What is chlorophyll? Chlorophyll is green colored pigment present on leaf as the leaf looks green. Understood? Chlorophyll क्या है, कहाँ पे रहती है? Chlorophyll लीफ पे रहती है, जिस वजह से कि लीफ जो है वो ग्रीन कलर का दिखता है। सेकेंड रॉ मटेरियल क्या है? सनलाइट। फोटोसिंथेसिस करने के लिए सारे रॉ मटेरियल्स को लीफ पे पहुंचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट इज मच नीडेड दैट ऑल रॉ मटेरियल्स शुड एक्यूमुलेट इन द लीफ. सो क्लोरोफिल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लीफ बिकॉज द कलर ऑफ लीफ इज ग्रीन. नाउ सनलाइट, हाउ द सनलाइट इज स्टोर्ड इन लीफ. सनलाइट लीफ में कैसे स्टोर होकर रहती है? जैसे हम as I told you in my earlier classes that as the example of inverter, we all are having inverter, and the function of inverter is when the power supply is broke down, when the power supply is broken down, at that time we are getting the backup from inverter. हमारे सबके घर में इन्वर्टर है और इन्वर्टर का काम क्या है? जब इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, तब जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर हमें लाइट का बैकअप देता है, लाइट का बैकअप हमें देता है, जिस वजह से कि बिना करंट के भी हमारे घर रोशनी मिलता है, हमें हम लोगों को रोशनी मिलता है, राइट। ठीक उसी तरीके से सनलाइट, जैसे हम लोग सिर्फ दिन में नहीं खाते हैं, हम लोगों को रात को भी भोजन की ज़रूरत होती है। लाइक सेम द प्लांट ऑल्सो प्रिपेयर देयर फूड एट नाइट टाइम ऑल्सो। ओके, at night time how they are preparing their food? Because the chlorophyll, the green color pigment present on the leaf, it trap the sunlight at daytime and store in chlorophyll, and at night when it is night and when it need to photosynthesis, that stored sunlight is backup the leaf to prepare their food. Understood? दिन में जो सूरज की रोशनी गिरती है, वो सूरज की रोशनी क्लोरोफिल में स्टोर होकर रहती है, क्लोरोफिल में स्टोर होकर रहती है। और इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इन एब्सेंस ऑफ सन, जब सन का एब्सेंट होता है, यानी कि जब शाम के समय जब ग्रीन लीफ फोटोसिंथेसिस करती है, तब क्लोरोफिल में जो स्टोर होकर जो सनलाइट रहता है, वो सनलाइट को लीफ यूज करती है एज रॉ मटेरियल। अंडरस्टूड? सो क्लोरोफिल और सनलाइट ये ऑलरेडी लीफ में कैसे प्रेजेंट होगी ये हम लोग देखे हैं। थर्ड थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड लीफ तक कैसे पहुंचती है? कार्बन डाइऑक्साइड लीफ तक कैसे पहुंचती है? हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड रीच टू लीफ? कैन यू सी कार्बन डाइऑक्साइड? Never, because it is a gas. Carbon dioxide is a gas, and we can't see carbon dioxide. But in leaf, there is a pore, tiny pores on the surface of leaf. Okay, tiny pores of leaf. Tiny pores are present on the surface of leaf, which are called stomata. तो जो पत्ते होते हैं, पत्तों के ऊपर छोटी छोटी छेद मिलती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा कैप्चर्ड और absorb the carbon dioxide from the atmosphere to the leaf, and it provide for
फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टूड? तो ये स्टोमेटा क्या है? लीफ के सरफेस पे वेरी टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ which are known as stomata, and the function of stomata is to accumulate, to absorb or to collect, okay, to collect the carbon dioxide for photosynthesis. Understood? ये तीन चीजें कहाँ से आती है? क्लोरोफिल, ग्रीन कलर पिगमेंट ऑन लीफ, सनलाइट stored in chlorophyll, okay, carbon dioxide stored in stomata, the tiny opening pores, okay, the tiny opening pores, carbon dioxide। ये तीन चीजें लीफ तक पहुंच गई। अब फोर्थ थिंग इज वाटर। वाटर, हाउ दिस वाटर रीचेस टू द लीफ? लीफ तक वाटर कैसे जाती है? थ्रू द सक्सेशन, थ्रू द सक्सेशन, ओके। देयर आर मेनी vessels, there are many transportation vessels in the plant, okay। in higher classes you will study about the vessels, tissues of plant। तो जो soil में जो पानी हम लोग देते हैं पौधे को, या जो minerals देते हैं, जो nutrient देते हैं, ये सब these all are absorbed by the roots, these all are absorbed by the roots and reaches to the leaf। so all these four raw materials ultimately reaches to leaves, which is the kitchen of the plant। प्लांट के किचन तक ये चारों रॉ मटेरियल पहुंच गई और क्या हो गई वहां पे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अल्टीमेटली took place, okay। So understood the role of leaves in the photosynthesis। फोटोसिंथेसिस में लीफ का रोल क्या है, अभी आप लोगों को पता चला। लीफ का रोल एक ही है कि लीफ क्या करती है, जितने भी रॉ मटेरियल हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, द रॉ मटेरियल्स लाइक क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑल फोर रॉ मटेरियल्स आर एक्यूमुलेटेड इन लीफ एंड इट परफॉर्म्स the chemical reaction, and in result we are getting carbohydrate and oxygen। clear? but still there are तो कन्फ्यूजन्स। लेकिन जब हम लोगों को पता चल गया कि ग्रीन लीफ प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स, लेकिन उसके बाद भी दो कन्फ्यूजन्स हमारे पास है। पहला कन्फ्यूजन क्या है? फर्स्ट कन्फ्यूजन, द डिजिट प्लांट्स। डू यू नो अबाउट डिजिट प्लांट्स? मोस्टली दे आर टॉन्स, मोस्टली दे हैव टॉन्स लाइक कैक्टस, ओके, डेट पाम। डिजर्ट यानी कि डिजर्ट रीजन में, रेगिस्तान रीजन में जो पौधे हमें देखने को मिलती हैं वो पौधों का लीव्स नहीं होता है। दे डोंट हैव लीव्स एट ऑल, इंस्टेड ऑफ लीव्स दे हैव टॉन्स। लीव्स के बदले उन लोगों में कांटे पाए जाते हैं, लीव्स नहीं है। जबकि अभी आप लोग पढ़े हो कि ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड, बट वो मतलब कैक्टस में या डिजर्ट प्लांट में लीव्स नहीं है। इसका मतलब डिजर्ट प्लांट भोजन नहीं बना पाएगी। Deciduous plant is unable to prepare food for them. They are not taking part in photosynthesis, है ना। सेकेंड क्वेश्चन, आप देखे होंगे आप लोग, मतलब बहुत लोग गार्डन में क्रोटन प्लांट्स लगाते हैं, डिजाइनिंग प्लांट्स लगाते हैं, जैसे मनी प्लांट है, उसका एग्जाम्पल है। तो ये प्लांट्स की लीव्स जो है वो डिफरेंट कलर का रहता है, पर्पल कलर रहता है, पिंक कलर रहता है, ग्रीन एंड वाइट रहता है। मनी प्लांट अगर आप देखोगे तो मनी प्लांट का लीफ कौन सा कलर का होता है? वेरीगेटेड लीफ। दे आर हैविंग वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ हम किसे कहेंगे? वेरीगेटेड लीफ मीन्स दो लीव्स विच आर मोर देन 2 कलर्स। जो लीफ का 2 कलर से ज़्यादा रहता है उसको हम लोग वेरीगेटेड लीफ कहेंगे। तो 2 क्वेश्चन हमारे मन में यह आती है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिजिट प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करेंगे जबकि उनके पास ग्रीन लीफ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, वेरीगेटेड लीव्स जो है वो कैसे फोटोसिंथेसिस करेंगे जबकि वो कलरफुल है। सो आंसर इज दैट इन डिजिट द लीव्स आर कन्वर्टेड
Instead, on place of leaves, the plants are having thorns. डिजर्ट प्लांट यानी कि रेगिस्तान में जो प्लांट्स हम लोग देखते हैं वो प्लांट्स में पत्तों के बदले उन लोगों में कांटे पाए जाते हैं. कांटे क्यों पाए जाते हैं? बिकॉज दिस thorns are helping the plants that the plants cannot take part in transpiration. ठीक है, जो प्लांट में जो कांटे होते हैं, कैक्टस में जैसे कांटे हैं, कांटों का मतलब क्या है? पत्ते नहीं है लेकिन कांटे हैं. और कांटों का काम यही है कि जिस प्रकार से जो ग्रीन लीव्स दे आर transpiration, they are taking part in transpiration. Transpiration means leave out the water droplet in the atmosphere. जैसे प्लांट भोजन बनाने के लिए वाटर का यूज की, जितना वाटर ज़रूरत था फोटोसिंथेसिस के समय फोटोसिंथेसिस हो गया, और जो वाटर बच गया, ओके, अनयूज्ड जो रह गया वो क्या है, वो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, यानी कि ट्रांसपायरेशन हो जाता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज transpiration. The leaving out of water droplet into the atmosphere by green leaves are called transpiration. Understood what is transpiration is? Transpiration is the process in which water droplets are given out in the atmosphere by green leaves. In desert plants, leaves are reduced to spines. Okay, leaves are reduced to spines. Leaves नहीं होती है लेकिन leaves के बदले में spines यानी कि कांटे होते हैं. And this prevents the loss of water in atmosphere by the process of transpiration. जो desert plant है, desert plant में leaf नहीं है, कांटे हैं. कांटों का काम क्या है कि वो transpiration होने से plant को रोकती है. And mostly these desert plants, they are having green colored stems. They are having green colored stems because all the chlorophylls are present on the stems of desert plant. जो desert plant है, desert plant का जो stem है, वो stem में chlorophyll accumulate होकर रहती है, sunlight stem में accumulate होती है, carbon dioxide stem में accumulate होती है, water stem में accumulate होती है. Hence the desert plants also take part in photosynthesis, and the food factory of desert plants are their stems. जैसे जनरली प्लांट जो होती है वो जनरली प्लांट्स का जो लीफ फूड फैक्ट्री होती है, लेकिन डिजर्ट प्लांट का फूड फैक्ट्री होती है उनके स्टेम, बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर. अंडरस्टूड? गॉट क्लियर अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, जो वेरीगेटेड लीव्स जो होती है, वेरीगेशन लीफ जो होती है, वो वेरीगेशन लीव्स कैसे फोटोसिंथेसिस करती है? जबकि हम लोग अगर मनी प्लांट्स की बात करें तो दे हैव टू कलर्स, वाइट एंड ग्रीन और येलो एंड ग्रीन. लेकिन ग्रीन कलर तब भी होती है, हल्का फुल्का ग्रीन कलर होती है. तो ये लोग जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन लोग मतलब इस वेरीगेटेड लीफ जो फोटोसिंथेसिस करती है, ये वेरीगेटेड लीफ का रेट जो होता है that is lower than other green plants, but they also do photosynthesis. Clear? Okay, fine. So now let us see importance of photosynthesis. अब तक आप लोगों को पता चला फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, प्लस लीफ का रोल क्या है. The final point is importance of photosynthesis. Importance of photosynthesis. So students, now tell me, photosynthesis किसे कहते हैं ये हमें पता है. फोटोसिंथेसिस होने के बाद हम लोगों को रिजल्ट में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलता है. कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलता है. कार्बोहाइड्रेट जो है that is a component of our food, that is a component of our nutrient or our food. Oxygen is very much essential. It is an essential gas for survival of organisms.
और एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए रेस्पायर करना पड़ता है, ब्रीद इन करना पड़ता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन और फूड ये दोनों हमें प्लांट से मिली। अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस क्या है। सपोज imagine what will happen to the life if there is no photosynthesis in the world. Okay, imagine what will happen to the life if will no photosynthesis. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, कोई भी पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तब हमारे अर्थ में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। व्हाट आर प्रॉब्लम्स? फर्स्ट प्रॉब्लम इज there would be no food available. There will be no availability of food. पहली चीज we have to understand that all organisms depend upon plants directly or indirectly for food. हम सब भोजन के लिए प्लांट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग डिपेंडेबल रहते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, हम लोग को फूड कहाँ से मिलती है? जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च के फॉर्म में जहाँ पे रखती है, उससे हम लोग फूड कहते हैं। सपोज कुछ प्लांट्स के हम लोग फ्रूट खाते हैं। वी आर ईटिंग leaves of some plants, we are eating fruits of some plants, we are eating flowers of some plants, we are eating stems of some plants, we are eating trunks of some plants, है ना? We are eating roots of some plants. यानी कि कुछ प्लांट्स पे हम लोग रूट खाते हैं, कुछ प्लांट के पत्ते खाते हैं, कुछ प्लांट के फ्लावर खाते हैं, कुछ प्लांट के फ्रूट खाते हैं, कुछ प्लांट के स्टेम खाते हैं हम लोग, है ना? ये सब क्यों हम लोग डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं? बिकॉज ये डिपेंड करती है कि जो प्लांट के हम लोग जो हिस्सा खाते हैं वो प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट को कहाँ पे स्टोर करके रखती है। फॉर एग्जांपल स्पिनच, अगर हम लोग स्पिनच की बात करें या पालक की बात करें तो हम लोग उसका लीफ खाते हैं। लीफ क्यों खाते हैं? क्योंकि पालक में जो फोटोसिंथेसिस होती है, जो कार्बोहाइड्रेट बनती है, जो स्टार्च बनती है, द स्पिनच स्टोर्स इट starches in the leaves. हम लोग मैंगो ट्री के हम लोग फ्रूट खाते हैं। फ्रूट क्यों खाते हैं? बिकॉज मैंगो प्लांट आफ्टर फोटोसिंथेसिस स्टोर्स इज स्टार्च इन फ्रूट्स। जो प्लांट अपना स्टार्च को जहाँ पे एक्यूमुलेट करके रखती है वो हिस्सा हम लोग प्लांट का खाते हैं। सो importance of photosynthesis, the first importance is there will be no availability of food. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो स्टार्च नहीं होगा। अगर स्टार्च नहीं होगा तो प्लांट का कोई हिस्से में स्टार्च एक्यूमुलेट होकर नहीं रहेगा। अगर एक्यूमुलेट होकर नहीं रहेगा तो उस हम लोगों को भोजन भी नहीं मिलेगी। अंडरस्टूड? फर्स्ट पॉइंट, देयर विल बी नो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। सेकंड पॉइंट, there the life surviving gas will not be available. The life surviving gas, oxygen, will not be available. As I told you, the result of photosynthesis, as the form of result of photosynthesis, we are getting two things: carbohydrate and oxygen. Carbohydrate in the form of energy, in the form of food we are getting, and oxygen is the life surviving gas. अगर photosynthesis होती है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी। जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी तो all living organisms will suffer. They will not survive because oxygen is known as life surviving gas. Understood? Third point, the balance of oxygen and carbon dioxide will be disturbed. The balance of
oxygen and carbon dioxide will be disturbed. So during photosynthesis, plants need carbon dioxide and plants give out oxygen. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एक बैलेंस बना हुआ रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, यह इम्बैलेंस हो जाएगी. अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस आप लोगों को पता चला. फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज नो फूड विल बी अवेलेबल ऑन अर्थ. सेकेंड, द लाइफ सर्वाइविंग गैस ऑक्सीजन विल नॉट बी अवेलेबल. थर्ड, द balance of carbon dioxide and oxygen will be disturbed. So these three are the importance of photosynthesis. So dear students, in today's class we learned the role of leaves in photosynthesis. The raw materials are needed for photosynthesis. And what happens in the desert plant during photosynthesis and importance of photosynthesis. So, and you have to listen carefully this video, watch carefully this video. If you have any doubt, you can ask me. You can ask me your questions in my group. And let us, today I am going to give you some more exercises that to know how far you understood. Okay. So the first question is, what is photosynthesis? Second one is, what are the chemical natures? So, what is the chemical nature? Chemical nature of food. We get from photosynthesis.